Good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is fine. So, let me introduce myself. My name is Pallavi, and we are going to learn science today. Okay, so the topic is nutrition in plants. So, this is the today's topic which we are going to learn, and this is from class 7. Okay, so we are going to learn about the nutrition in plants. So, for that purpose, we are going to learn about food, and we will learn about nutrition after that. Okay, so yes, food क्या है? Food, that is the basic requirement. Food, that is basic requirement for an organism, whether it is plants, animals or any insects. Okay, so सबकी requirements क्या है? Food. फूड जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, फूड रीजन बनता है किसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, फूड रीजन बनता है, फूड की वजह से हम क्या करते हैं, कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, तो फूड फूड में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. ओके, सो यस, वी विल लर्न अबाउट द फूड. व्हाट इज फूड? सो बेसिकली फूड, that is the basic requirement of our body, whether it is human or animals. Okay, so that is food. So basically it is basic requirements means of an organism. Okay, an organism, like plants, human, animals, everyone need food. Everyone need food for their growth and development. Okay, so that is food. Now we have a question: what is nutrition? So as we have discussed, we get nutrition from the food. Food से हमें nutrition मिलता है, लेकिन nutrition है क्या? Okay, so nutrition is that what we consume, what food we consume, that the utilization of that food is the nutrition. Okay, the utilization of the food which we consume. So that is the nutrition. So from food we get different type of nutrients, like what? Vitamins, minerals, then carbohydrates, protein, fat. So these are some substance which we get from the food. Okay, so basically I'm going to write down here what is nutrition. Okay, so yes, let me change the color and then write down the nutrition. So basically, nutrition is the process of, yes, the process of consuming food. Okay, process of consuming food and getting energy after utilization of that food. Of that food. Okay, so basically that is nutrition. Okay, so there are different mode of nutrition. So what is mode of nutrition? So the way, the process, the method by which we get nutrition. Okay, the way, the process, the method by which we get nutrition. मतलब कि क्या है कि जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, so the process oblique method by which we get nutrition is known as what? Mode of nutrition. Okay,
Now we are going to learn about the group of organisms. So organisms are categorized in different group. Okay, so we are going to learn about that. So here we are going to take the two type of organisms, two group of organisms. So first one is autotrophs and second one is heterotrophs. अभी हम क्या करेंगे, और दो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप लेंगे. पहला क्या होगा, ऑटोट्रॉफ, और दूसरा क्या होगा, हेटरोट्रॉफ. तो ऑटोट्रॉफ्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, एंड हेटरोट्रॉफ्स में क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक. ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन इन आवर माइंड, व्हाट इज ऑटोट्रॉफ. So auto by name we are going to discuss about that. So AUTO, auto, that means own, or we can say self. Okay, and tropes, that means nourishment, that is, okay, nourishment. So basically autotrophs are those organisms who prepare their own food. Okay, so who prepare their own food, कौन कौन ऐसा है जो कि अपना फूड खुद बनाता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता फूड के लिए. So yes, of course, that is correct. So that is plants prepare their own food by the process of photosynthesis. Okay, so we will discuss about that also. Okay, but before but before discussing that, we are going to discuss about the heterotroph and heterotropic mode of nutrition. Okay, so heterotrophs, so the organism who depends on the other plants or animal for their foods. कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड्स के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. और जो दूसरों के थ्रू अपना फूड लेते हैं, दैट मीन्स नरिशमेंट लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, हेट्रो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक. Okay, so basically there are two group here. First one is autotroph who prepare their own food. Second one is heterotroph who depends on the other creature, other organism for their food. Okay, so here we are going to take the example of human, animals, birds and fishes. क्या होता है, ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, वो फूड के लिए या तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, वो एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, वो प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं. ठीक है, एनिमल्स एनिमल्स फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल्स है, लाइक कि कुछ हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स. सो ये कैटेगरीज है एनिमल्स की जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स, दैट मीन्स ग्रासेस एंड प्लांट्स को खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. बट देयर आर सम एनिमल्स हु डिपेंड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर food. Okay, and the next is the category, the animals who only depends on the other animal for their food. वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए. तो वो कौन कौन से एनिमल्स हो गए, लाइक कि लायन, टाइगर्स वगैरह क्या है, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उनको मार के खाते हैं. ठीक है, then birds. So birds can be herbivores and carnivores both. Okay, birds क्या होते हैं, birds या तो वो insects वगैरह भी खाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो plants को भी खाते हैं. Okay, then fishes. So fishes also dependent on other creature for their own food, or plants for their own foods. Okay, so these are the heterotrophs, or we can say this type of nutrition is heterotropic nutrition. Okay, so now we are moving towards the autotrophs. अभी हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स के बारे में, दैट मीन्स प्लांट्स के बारे में. ठीक है, क्योंकि यहाँ टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या है प्लांट का, पहले वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उस प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरह से फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में, दैट इज फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो प्लांट का जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है of plants are nitrogen, phosphorus, phosphorus,
पोटासियम। ये क्या है? बेसिक न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को चाहिए होता है। इसके अलावा प्लांट्स को और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, लाइक कि उन्हें क्या क्या चाहिए? आयरन, जिंक, ये क्या है? सप्लीमेंट्री है जो उन्हें चाहिए होता है प्लांट्स को, ठीक है? तो लाइक आयरन, जिंक, कार्बन, ओके, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें प्लांट्स को चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, बट द बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर nitrogen, phosphorus and potassium. So we can write down it like NPK. NP, N stands for nitrogen. That means N क्या किसका सिंबल है? नाइट्रोजन का। P किसका सिंबल है? फास्फोरस का। और पोटासियम का सिंबल क्या है? K है। ठीक है, तो ये सिंबल किसका हुआ? NPK, जो कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, जो कि प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए। ओके, सो दैट इज अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स. So now we are going to learn how plants prepare their food. Okay, so here we are going to discuss about the photosynthesis. So what is photosynthesis? So I think many of you have knowledge about that, but yes, we will discuss about that. So here we can see in this picture there is a plant. Okay, ये plant है, ये इसका क्या है? Stem है, ये root है, ये क्या है? ये soil का layer है। ठीक है, ये सॉइल का लेयर है। क्या करता है? जो प्लांट में ग्रीन लीफ होता है, ग्रीन लीफ क्या करता है? ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है, ठीक है? ग्रीन लीफ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर। ओके, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? एयर से, और हम बोल सकते हैं एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, वाटर कहाँ से लेता है? वाटर, जो सॉइल है, ये सॉइल में जो वाटर मिक्स होता है, इससे ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर एब्सॉर्ब करता है। और ये क्या करता है? सपोज ये सन है, ये क्या करता है? सनलाइट लेता है। सन से क्या लेता है? सनलाइट। ठीक है, सन से ये क्या लेता है? सनलाइट। प्लांट्स के लिव्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, सन से सनलाइट लेता है, प्लांट के लिप में क्लोरोफिल होता है। उसकी प्रेजेंस में क्या ये बनाता है? ये अपना फूड बनाता है। फूड क्या है? ग्लूकोज, और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट। ओके, ग्लूकोज प्लस क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज स्टोर्ड इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और स्टार्च में कन्वर्ट होके वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। स्टेम में, कुछ रूट में, कुछ लिफ में, सीड्स में, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, and that is water. H2O is water. Okay, so carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll, plants prepare their food, that is glucose, that means carbohydrates, plus oxygen. Oxygen जो बनता है वो क्या होता है? वापस से कहाँ चला जाता है? एटमोस्फेयर में चला जाता है। ओके, वो अब वापस से एयर में जाके मिक्स हो जाता है। So that is all about the photosynthesis process. Okay, so and just because the photosynthesis is carried out in the leaves of the plant, just because of that the leaves are also known as food factory of a plant. लिव्स को हम क्या बोलेंगे? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, दैट मींस फूड प्रिपेयर कहाँ होता है? लिव्स में होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई. So now we are going to learn the next thing, okay? And that is about what? So that is about the necessary condition for the photosynthesis. Photosynthesis के लिए क्या क्या necessary conditions होनी चाहिए? क्या क्या requirement होनी चाहिए photosynthesis carried out carry करने के लिए? Okay? So the first necessary condition for the photosynthesis is what?
carbon dioxide for photosynthesis. So yes, plant required carbon dioxide for the photosynthesis. So from where they get carbon dioxide? So yeah, yes, we have discussed they get carbon dioxide from where? Atmosphere. ठीक है, वो क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. ठीक है, बट कैसे लेते हैं? क्या कुछ ऐसा चीज होता है जो ये ऑब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को? यस, डेफिनेटली. So that is about the stomata. That is about the stomata present in the green leaf. Stomata कहाँ present होता है? Green leaf के surface में present होता है, ठीक है? Stomata. So here we can see these are the stomata, okay? And we can see this two valve-like structure that is known as guard cells. Okay, so that let me change the color of pen here, and then I can mention that. So that two guard like valve like structure that is known as guard cell, उसको क्या बोलते हैं हम? guard cell बोलते हैं, ठीक है? And in that guard cell the chloroplast is present. Chloroplast. So what is the work of chloroplast? Chloroplast का काम क्या है? तो ये photosynthesis की process में काम करता है, ठीक है? photosynthesis में help करता है, ठीक है? food preparation में help करता है, okay? Then we can see the here the open stomata. So when stomata get open, we can see this type of opening, okay? And that is the surface of green leaf. So this type of opening. So when stomata get open कब होता है stomata? जब उसको एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना है, तो stomata क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है? फिर उसके बाद वो क्लोज हो जाता है. फिर दोबारा कब ओपन होता है? जब ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है, ओके? सो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फूड, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, oxygen get released from the stomata, and at that time stomata also open. ओके, स्टोमेटा ओपन होता है कब? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए, ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए एटमॉस्फेयर में, ओके? देन we can see the picture of closed stomata look like that, okay? Closed stomata look like that, okay? So that is the way by which plants get carbon dioxide for the photosynthesis, okay? The next necessary condition for the photosynthesis is water for photosynthesis. So how plant get water? प्लांट को वाटर कैसे मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए? ओके, सो लेट मी ड्रॉ अ पिक्चर हियर. सपोज these are the stem, okay? And here we can see that is the leaf. ये क्या है? लिप्स है प्लांट का, ठीक है? ये क्या है? स्टेम है, ठीक है? और यहाँ क्या है? प्लांट्स का रूट्स है. ये सॉइल है, ये रूट्स है. रूट्स क्या करते हैं? रूट्स जो सॉइल में वाटर मिक्स होता है उसको क्या करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब थ्रू व्हाट? क्या कोई कुछ एब्जॉर्बेंट वगैरह होता है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब करता है? So yes, I want to tell you there are a tubular vessels present in the different part of the प्लांट्स. दैट मीन्स एक ट्यूबुलर वेसल्स होता है, वो क्या होता है? रूट से कनेक्टेड होता है, और वो हर पार्ट, प्लांट्स के हर पार्ट तक जाता है वो ट्यूब, ओके? सो दैट ट्यूब लाइक वेसल्स are known as what? Xylem vessel, ओके? उसको क्या बोलते हैं? जाइलम वेसल करते हैं, जाइलम वेसल कहते हैं. जाइलम क्या करता है? सो जाइलम बेसिकली सप्लाई दैट वाटर टू द लीफ. क्या करता है? उस वाटर को जो रूट एब्जॉर्ब करता है वो जाइलम के थ्रू कहाँ पहुंचता है? लीफ तक पहुंचता है, ठीक है? तो वाटर कहाँ से मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए? फ्रॉम द सॉइल, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, okay? So that is the second condition. Now we are moving towards the third condition for the photosynthesis process. And what is that? So that is the role of chlorophyll in the photosynthesis. So what is the role of chlorophyll? So basically chlorophyll, that is, change the color of pen here. So yes, that is green pigment present in the leaf of plant.
So what chlorophyll do? What is the work of chlorophyll? So basically chlorophyll provide green color to the plant and also absorb sunlight. क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो सनलाइट जरूरी होता है किसके लिए? फूड प्रिपरेशन के लिए, ओके। सो क्लोरोफिल बेसिकली एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड आल्सो प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लिव्स, ओके। लिव्स क्लोरोफिल की वजह से ही लिव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, और वो सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ओके। सो दैट इज द रोल ऑफ व्हाट? दैट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल। Now we have role of sunlight in photosynthesis. So sunlight का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में? ठीक है, तो हम लोग का खाना जब कुक होता है, कहाँ पे कुक होता है? हम उसे क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। दैट मीन्स हम उसे क्या करते हैं? कुकिंग गैस पे रखते हैं, फिर खाना कुक होता है, ठीक है। सो हियर द रोल ऑफ सनलाइट इज सेम लाइक दैट, ओके। सनलाइट का रोल क्या है? तो बेसिकली सनलाइट क्या करता है? वो हीट लाइट एनर्जी को, तो फूड की प्रिपरेशन में क्या होना, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अपने फूड की प्रिपरेशन में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही प्लांट जो फूड बनाते हैं उनके लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो बेसिकली लाइट एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज इनटू द फूड, ओके। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? मैकेनिकल एनर्जी, दैट मींस फिर फूड में, ठीक है। वी हैव अ क्वेश्चन इन आवर माइंड कि क्या रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सो एज वी हैव टॉक दैट प्लांट द फूड स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, क्या होता है? फूड डिफरेंट पार्ट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर होते हैं। तो क्या होता है कि रात के टाइम में जो रूट है अब्सॉर्ब करता है सॉइल से ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके और उस फूड जो स्टोर होते हैं उसको यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए, ओके। सो बेसिकली now we have another thing about the chlorophyll. Chlorophyll, the important thing, okay, so please do a note of that. Chlorophyll क्या करता है? ग्रीन, सॉरी, हमें पता है कि 3 बेसिक कलर है, ओके। कौन कौन से? ग्रीन, रेड और ब्लू, ये बेसिक कलर है, ठीक है। तो ये कलर के इन लाइट जो होते हैं, ये लाइट के जो ये 3 कलर क्या होगा? जो क्लोरोफिल है रेड और ब्लू लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ब्लू और रेड को एब्सॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो ग्रीन लाइट है उसे क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जब ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या करता है, हमें क्या लगता है? लीफ का कलर ग्रीन है। क्यों ग्रीन होता है लीफ का कलर? क्योंकि जो ब्लू एंड रेड लाइट है वो एब्सॉर्ब कर लिया जाता है क्लोरोफिल से, और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से लिप्स क्या होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। Now we have a leaves of various color. So yes, we know the photosynthesis carried out in green plant. हमें पता है कि ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, बट बहुत सारे प्लांट हैं जिनके लिव्स कैसे होते हैं? वायलेट कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन इन आवर माइंड, सो इज एनी फोटोसिंथेसिस आर कैरिड आउट इन दैट लिव्स आल्सो? क्या उन सारे लिप्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है? यस, ऑफ कोर्स होती है, बिकॉज द क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन दैट प्लांट्स आल्सो, but the difference is here the a cover layer, that means the basically a layer of the different color, different pigment are covered the chlorophyll। क्या करता है? एक लेयर होता है पिगमेंट्स का, वो क्या कर लेता है? जो रेड, वायलेट और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं उनका लेयर क्या कर लेता है? क्लोरोफिल को कवर कर देता है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है उनकी लेयर के अंदर में होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द फोटोसिंथेसिस आर आल्सो carried out in those plants, but that color are just because of the pigments, okay, because of the layer of pigment, okay. But photosynthesis are carried out in the other color plants also. Like if we can take the example of some plants like hydrosia, so cascata, then we can take the utricularia. So these are some plants which are different in color, that means other than green color, okay. Now photosynthesis by plants other than leaves.
तो प्लांट्स के किसी और पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लिव्स के अलावा भी कहीं और फोटोसिंथेसिस हो सकता है? यस. So that happen in case of which plant? Desert plant. We have seen cactus. Cactus हमने देखा हुआ है. So the basically leaves convert into the spine like structure. Why? Because to prevent the excess loss of water. Desert में क्या एरिया में क्या होता है, वाटर बहुत कम होता है. तो क्या होता है, जो कैक्टस वगैरह होते हैं, डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनके लिव्स किस में कन्वर्ट हो गए होते हैं? स्पाइन्स में. क्यों? क्योंकि वाटर एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके. ओके, एंड वी कैन सी द स्टेम ऑफ द कैक्टस इज ग्रीन. So yes, photosynthesis are carried out in stem also for the green plant, for the desert plant. Okay, for the desert plant, photosynthesis carried out in stem, carried out in leaf. Okay, so that is the about the desert plant. Now photosynthesis by algae. So algae, we all have seen a greenish layer on a pond, river जो कि बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है, या पॉन्ड या फिर और कहीं भी वाटर कलेक्ट हो जाए, उस वाटर को काफी टाइम से वैसे छोड़ दिया जाए, तो क्या देखते हैं हम, उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर देखते हैं. We can see a green layer. What is that green layer? So that are algae. That are algae. Algae, that green layer are algae. And why that is green? Are they plants? So yes, they perform photosynthesis. Okay, they have chlorophyll. Algae में क्या होता है? Chlorophyll होता है. ठीक है, अल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल है, दैट मीन्स कि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. ओके, बट ये अलग बात है कि अल्गी जो है हैविंग द स्टेम, प्रॉपर स्टेम, रूट एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. बट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, अल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन होता है. क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट. अभी तक अब हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वी हैव डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. Then we have discussed about the photosynthesis. Then we have discussed about the condition of photosynthesis. So this is all for today. We will discuss more about the different category of the nutrition, like saprophyte, or so this type of nutrition we will discuss in our next session. Okay, so this is all for today. I hope you have enjoyed the session. So bye everyone, take care, keep learning, keep smiling. Bye.